In this video, I will discuss how to attempt most difficult mathematics part in JEE Mains. Few days back, when the results of JEE Main Session 1 announced, I felt completely disappointed by finding not even a single student from Tri-City in top 14 of the country. When I went through the results, I found out of the 14 who are getting perfect 100 percentile, 7 are from Telangana and Andhra Pradesh, and remaining 7, one from each state independently. I went through the memory lane. As far as I remember, from 2001 to 2005, there was at least one in top 10 in the country from the Tri-City, that is Chandigarh, Panchkula and Mohali. Then came the glorious period. From 2006 to 2015, on an average, 2 students in top 10 of the country from this zone itself. That's a real good result. After 2016 onwards, the results of Chandigarh started sliding down. And in fact, this is the time when some big institutes joined Chandigarh. With these big institutes came the culture of big institutes. Means there is a neck-throat competition among the institutes. And this neck-throat competition among the institutes passed on to the students. There is a neck-throat competition among the students. Good thing, good competition. When there is a neck-throat competition of the students, they started thinking, this institute is good, this is bad, this is good, this is bad. Then they started thinking on the subject lines. Here maths teacher is good, here maths teacher is bad. Here physics teacher is good, here physics teacher is bad. That started creating confusion. Whether we should join this institute, this institute, this institute, or some individual teacher. Then another thing happened. In the middle of one of the sessions, teachers of one institute shifted to other. Next year, teacher of that institute shifted to the third one. Then next year, teacher of the first shifted to fourth, then second to third, first to third, and this process continued year after year. In the mid of this session, teachers of the institute changes. Of course, being a teacher, we are responsible for that. And my request to all the teachers, at least we should not shift the institute in the mid of the session. If we want, we can shift after the session itself. No problem at all. And that will not affect the career of the students to whom they are teaching. Then I went with a deeper analysis. What actually happened to the students of Chandigarh? I found now the students are less focused in comparison to the years 2001 to 2015. And if they are not focused, not that much focused, so a lot of unforced errors. If there are a lot of unforced errors, naturally output is going to decline. Now why? Why they are less focused? Because information is coming from so many sources. They are getting confused. In fact, majority of them lost faith in their abilities. Very bad thing. They even lost faith in the teachers with whom they are studying.
If they are studying with some teacher, they must have faith in that teacher. If they are losing the faith, and hence the decline in Chandigarh's output. This is one reason I found this student to be less focused. There is another reason also. At that time, the way of learning of the Chandigarh student or Tri-City students, in fact, was conceptual. And now the way of learning changed to practice makes a man perfect. Okay, do these 100 questions, do these 200 questions, do these 300 questions. Now we are started talking in terms of the number of questions. So the shift is from conceptual to practice makes a man perfect. Now how this affected the output? Actually, Tri-City student has a different culture than the students from Telangana and Andhra Pradesh. Our student can at the most study for 8 hours per day regularly. At the most. They study near about 7 hours. Who are the toppers? 7 to 8 hours. And in that zone, students study near about 12 hours a day. So more practice. So here the practice is less, there the practice is more, and the output is more on that side. Now, if we revert back to the conceptual learning, we can of course improve our output. But this is not the right time for that. Our aim is to maximize the output in JEE Main session 2, which is very near. Of course, changing over to conceptual learning will take more than a year time. So that time is not there, so we will not go with that. But student can be more focused. So focusing of the students can be increased, and by improving upon the focusing of the students, we can improve upon the output of this zone students in JEE Main session 2. So now, before passing on to the 6 remedial steps to be taken in order to improve the percentile, I would like to start with a quote of Swami Vivekananda. Remember one thing, all power is within you. You can do anything and everything. Believe in that. Do not believe you are weak. Stand up and face the challenge. With this, I am starting my video. Alright. So, here I am going to discuss 6 remedial steps. So, remedial step number 1. As I talked, focusing of the student is the most important thing. I ask a simple question from you. During this period, student का जो focus है वो कहाँ होना चाहिए? Marks पे, rank पे, या percentile पे? Actually, here I will say, focus इन तीनों पे ही नहीं होना चाहिए. Focus होना चाहिए only on correctly attempting the paper. तो अगर स्टूडेंट का फोकस करेक्टली अटेम्प्टिंग द पेपर पे होगा, ओनली देन द रियल आउटपुट विल कम. दे मस्ट हैव फेथ इन देयर एबिलिटी कि दे कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस करेक्टली. ओनली देन दे विल बी डूइंग द क्वेश्चंस करेक्टली इन द पेपर. आफ्टर एवरी JEE Main exams all these years, good number of student comes to me. Okay, मेरा मैथ्स का आउटपुट अच्छा नहीं है इन कंपैरिजन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. पेपर के बाद आए, जब रिजल्ट आउट हुआ उसके बाद भी आए,
मेरा मैथ्स का परसेंटाइल ज्यादा है फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। हाँ, व्हाट इज दिस कंट्राडिक्शन? पेपर तो खराब हुआ मैथ्स का, बट परसेंटाइल इज बेटर इन मैथ्स। रीजन इज सिंपल। इफ पेपर इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट फॉर ऑल। इफ पेपर इज इजी, इजी फॉर ऑल। आपको मार्क्स और रैंक के बारे में वरी नहीं है, तो आपका सारा रिजल्ट किस पे डिपेंडेंट है? परसेंटाइल पे। तो इवन इफ you are getting fewer correct question in the paper, you can have a better percentile. So percentile is going to be a parameter जहां से आप evaluate कर सकते हैं अपने आप को। तो अब ये चीज तो evaluate ही नहीं हो सकती ड्यूरिंग द एग्जाम। आपका सारा फोकस होगा ऑन करेक्टली अटेम्प्टिंग द पेपर। हाउ वी नो बाकियों का कैसे हुआ, एंड हाउ वी नो ये पेपर डिफिकल्ट है या इजी है? तो हमारे को तो ये पता ही नहीं है। तो इसका मतलब है हमने सारा फोकस इसी पे रखना है कि हमारा पेपर करेक्टली अटेम्प्ट हो जितना भी हो। इफ इट इज डिफिकल्ट, आउटपुट विल कम अकॉर्डिंगली। इफ इट इज इजी, आउटपुट विल कम अकॉर्डिंगली। एंड हियर आई विल कमेंट, in easy paper it is difficult to get a good percentile. आपने एक दो एरर भी कर दी, you are nowhere, your percentile will slide down. In difficult paper, if you are getting say 12 correct, 13 correct, 15 correct, your percentile is going to be really good. All right, so my first point is your focus should be on correctly attempting the paper. Have faith in your ability and just attempt the paper. Output will automatically come. Second remedial step after focusing. Second remedial step regarding the order of the subjects in which you are going to attempt the JEE Mains paper. Now, past trend shows maths is the most difficult part, lengthy and difficult. In fact, I should say maths is lengthy and on the difficult side in JEE Mains paper. All right. Based on this, you should not start your JEE Mains paper with maths. Reason: if your attemptation is less, say you are able to attempt 10 questions out of 25, you will have a very negative effect on the whole paper. So you should not start your paper with maths as the first subject. So from where you have to start? Either from physics or from chemistry. अब फिजिक्स से करें या केमिस्ट्री से करें, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, you start with that. तो अगर आप फिजिक्स में ज्यादा कंफर्टेबल हो, स्टार्ट विद फिजिक्स, एंड अगर आप केमिस्ट्री में ज्यादा कंफर्टेबल हो, स्टार्ट विद केमिस्ट्री. नेक्स्ट, गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कीप्स मैथ्स एज ए थर्ड सब्जेक्ट. इट विल बी लेंथी एंड डिफिकल्ट, तो थर्ड सब्जेक्ट पे रखते हैं. अब दोज हु आर कीपिंग मैथ्स एज द थर्ड सब्जेक्ट, even their percentiles are not good. Reason: maths is lengthy and difficult, and secondly there is a time pressure towards the end. तो प्रेशर का क्या हो गया? स्केयर. डिफिकल्टी लेवल का स्केयर हो गया. अगर ये स्केयर हो गया तो लॉट ऑफ अनफोर्स्ड एरर्स. से आपके 10 क्वेश्चन करेक्ट हुए और 12 गलत भी हो गए साथ में. अब आपका आउटपुट तो बहुत कम हो गया. तो आपको मैथ्स एज ए थर्ड सब्जेक्ट भी नहीं रखना चाहिए. नाउ वेयर टू कीप मैथ्स देन? तो यू शुड अटेम्प्ट मैथ्स एज अ सेकेंड सब्जेक्ट. आफ्टर अटेम्प्टिंग योर बेस्ट सब्जेक्ट, then start with the maths. Right? Now, while doing maths part, be careful about one thing. Maximum time limit for maths is 75 minutes. You can't attempt for more than 75 minutes, otherwise the whole paper will get spoiled.
Maximum time limit for math is this. Then, of course, at the third place, जो सब्जेक्ट बच गया, आपने फिजिक्स से स्टार्ट किया, देन मैथ्स, देन केमिस्ट्री. अगर आपने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया, केमिस्ट्री, देन मैथ्स, देन So these are the two possible orders which will maximize your output. So choose from either of them कि आपको ordering क्या रखनी है. But here I will say आप एक ordering अपनी आज की डेट में चूज कर लो and try to apply this ordering in the mock test. घर पे जो अभी मॉक टेस्ट देने हैं आपने पीसीएम के, उनमें लगाओ. इफ यू फील योर आउटपुट इज इंप्रूविंग, तो आप इसको जेईई मेंस पेपर में भी लगा देना. बट इफ यू फील आउटपुट इंप्रूव नहीं हो रहा, डोंट अप्लाई. सिंपल. बट बी केयरफुल. प्रेशर इज कंपैरेटिवली वेरी लेस व्हेन यू अपीयर फॉर ए मॉक टेस्ट एट. वहां पे जो टेस्ट होगा वो प्रेशर आपने फील कर लिया है सेशन 1 में, तो डिसाइड अकॉर्डिंगली. तो फोकसिंग के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑर्डरिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स. बीच में ही थर्ड पॉइंट भी इन्वॉल्व हो गया था, थर्ड रेमेडियल. देखिए, टाइम लिमिट फॉर ईच सब्जेक्ट इज फिक्स्ड. उससे ज्यादा टाइम आप नहीं लगा सकते. जैसे फिजिक्स में on an average 1 hour 5 minutes, मतलब 65 minutes. On an average बोल रहा हूं, इससे लेस भी हो सकता है, इससे 5-1 मिनट ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट. ऑन एन एवरेज इतना टाइम. ऐसे ही केमिस्ट्री में ऑन एन एवरेज 40 मिनट्स, मे बी 45, मे बी 35, डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट. ऐसे ही मैथ्स में जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है दैट इज 75 मिनट्स. आपको किसी भी हालत में 1.5 आवर मैथ्स पेपर पे नहीं लगाना है. देयर आर गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सेशन 1 दे स्पेंड मोर देन 1.5 आवर ऑन मैथ्स. दे आर ओवर कॉन्फिडेंट कि मेरा मैथ्स अच्छा है. ऑफ कोर्स आपका मैथ्स अच्छा है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन योर ओवरऑल परसेंटाइल. अब देयर इज अ स्टूडेंट विद मी getting a very good percentile in maths, 99.88, but that fellow is not getting all those good percentiles in physics and chemistry. So his total percentile is coming out to 95 point something. In maths he is getting such a good percentile. Now, so time limit to be followed strictly. हाँ, जो टाइम बच जाए आप लगाओ, वो फिर आप उस सब्जेक्ट में लगा दो where you are more comfortable in the paper. तो 3 पॉइंट्स हो गए. फर्स्ट इज फोकसिंग, सेकेंड पॉइंट हो गया ऑर्डरिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स, एंड द थर्ड हो गया आपका जो पॉइंट है दैट इज हाउ मच टाइम टू बी डिवोटेड टू ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स. फोर्थ पॉइंट तो मैं बिल्कुल रेमेडियल स्टेप को डिस्कस नहीं करूंगा. जब आपका रिजल्ट आया था या जब आपने पेपर दिया था, पेपर के बाद ही आपको पता लग गया था विच इज योर वीकेस्ट सब्जेक्ट. रिजल्ट के बाद आपने देख ही दिया ये वीकेस्ट सब्जेक्ट है, और आपने उस वीकेस्ट सब्जेक्ट को डेफिनेटली इंप्रूव किया होगा. तो आई होप सो. तो आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट पॉइंट कि वीकेस्ट सब्जेक्ट टू बी इंप्रूव्ड. इट्स ऑलरेडी ओवर. नाउ इज द टाइम टू गो विद द पीसीएम टेस्ट, नॉट विद द इंप्रूवमेंट इन सब्जेक्ट. नाउ आई एम पासिंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट. ऑल राइट. सो 4 पॉइंट्स हमने कौन से डिस्कस किए? फर्स्ट वन फोकसिंग, सेकेंड वन हमने कौन सा डिस्कस किया? ऑर्डरिंग ऑफ द सब्जेक्ट. थर्ड वन टाइम लिमिट. फोर्थ वन इंप्रूवमेंट इन द वीकेस्ट सब्जेक्ट. एंड द फिफ्थ, एट दिस जंक्चर you should give only PCM test, physics, chemistry, maths test, no individual subject test. Actually your paper is going to be PCM, तो जो भी आपको पेपर देने हैं वो PCM के देने हैं, और उन पेपर में जो मॉक टेस्ट दोगे ऑर्डरिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स वही रखोगे जो आप डिसाइड कर रहे हो, ऑर्डरिंग फिक्स, उसी ऑर्डरिंग के साथ देने हैं और नेक्स्ट टाइम उसमें इंप्रूवमेंट लानी है.
टाइम लिमिट ऑफ द सब्जेक्ट फिक्स्ड। आपको फुली एग्जैक्ट करना है टू मैक्सिमाइज परसेंटाइल इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड हेंस द ओवरऑल परसेंटाइल। आपको फुल 180 मिनट्स यूज करने हैं, नॉट 179 इवन एट होम। तो मॉक टेस्ट एग्जैक्टली उसी वे में देना है जैसे एक्चुअल टेस्ट दोगे। एंड इफ यू आर गोइंग विद अ वार्म अप बिफोर द टेस्ट, तो वो वार्म अप भी करना। तो मॉक टेस्ट आपको एग्जैक्टली उसी वे में देनी है, बट बी केयरफुल, मॉक टेस्ट में प्रेशर कंपैरेटिवली कम होता है। एक्चुअल टेस्ट आप दे आए हो, यू हैव एड्रेस्ड द आंसर, अभी हो चुका है, राइट? तो यू नो वेरी वेल कि कितना प्रेशर होता है ड्यूरिंग द टेस्ट और क्वेश्चंस क्यों नहीं निकलते बिकॉज ऑफ द प्रेशर। ऑलराइट, चलिए, दीज आर द 5 पॉइंट्स। नाउ आई एम पासिंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, हाउ टू अटेम्प्ट मोस्ट डिफिकल्ट मैथमेटिक्स पार्ट इन जेईई मेन। अटेम्प्टेशन में ही प्रॉब्लम आती है। अटेम्प्टेशन की प्रॉब्लम क्या है? यूजुअली जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में हम अप्लाई करते हैं वही हम मैथ्स पे अप्लाई कर देते हैं। हम क्या करते हैं, पहले इजी क्वेश्चन कर लें, फिर उसके बाद डिफिकल्ट पे आ जाएंगे। दिस वे ऑफ डूइंग इज वेरी रॉन्ग इन मैथ्स। रीजन, सी मैथ्स में नियर अबाउट 5 क्वेश्चंस जो होंगे, जो इजी कैटेगरी के होंगे, वो मिल गए आपके, वो आपने अटेम्प्ट कर लिए। 5 के बाद जो क्वेश्चंस बच गए वो एवरेज और डिफिकल्ट कैटेगरी के हैं। होता क्या है, 2 या 3 क्वेश्चन निकलने के बाद क्वेश्चन एक स्टक हुआ, बाई चांस दूसरा भी हुआ, तो प्रेशर इतना बिल्ड हो गया कि तीसरा भी नहीं अटेम्प्ट हुआ, चौथा भी नहीं अटेम्प्ट हुआ, एंड द होल पेपर गेट्स स्पॉइल्ड। तो अगर आप पहले सारे इजी कर डालोगे, तो जैसे ही आप स्टकअप हो गए पेपर में, आपका पेपर आगे नहीं जाएगा। मस्ट हैव फेल्ट दिस थिंग इन जेईई मेन सेशन 1। आप लोगों को पता लग गया होगा कि मैथ्स में क्या दिक्कत आती है। तो मैथ्स को करने का एग्जैक्ट वे होना क्या चाहिए? I will like you should give 30 seconds to each of the 30 questions. ये है शुरू के 30 seconds, हर क्वेश्चन में 30 seconds। अब यहां मैंने कहा 30 seconds, ये मैं कह रहा हूं ऑन एन एवरेज। किसी क्वेश्चन में तो 10 ही सेकेंड लगेंगे, जो मैं अभी प्रोसेस बताऊंगा उसके लिए, किसी में 20, किसी में 30, किसी में 40, किसी में 50, बट 1 मिनट से आप ज्यादा नहीं लगा सकते। इस 30 सेकेंड्स में ओवरऑल आप करोगे क्या? भाई, आपको क्वेश्चन को रीड करना है। अब रीडिंग में आपको 4 आंसर्स भी देखने हैं, क्योंकि कई बार हिंट आंसर्स से मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं करना, आपको गिवन को एनालाइज भी करना है। गिवन कैसे यूज होगा, आपको जो आपका टारगेट है, कहां पहुंचना है, उसको भी देखना है, उसको भी एनालाइज करना है। सिर्फ इतना ही नहीं करना, आपको ये प्रोसेस भी सोचना है कि आपका क्वेश्चन कैसे होगा। ये सारा काम होएगा 30 सेकेंड में, और मैंने 30 सेकेंड का मतलब बता ही दिया है। इट विल वेरी फ्रॉम 10 to 60 सेकेंड्स एक्चुअली। किसी क्वेश्चन में कितना लगेगा, किसी में एकदम से पता लग जाएगा, किसी में 20 सेकेंड लगेंगे, किसी में 40 सेकेंड लगेंगे, किसी में 50 सेकेंड लगेंगे। भाई, रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन, रीडिंग ऑफ द क्वेश्चंस विद आंसर्स। उसके बाद जब रीड कर लिया क्वेश्चन, तो एनालिसिस ऑफ द गिवन, एनालिसिस ऑफ टारगेट टू बी अचीव्ड, और उसके बाद प्रोसेस जिससे आपको सॉल्यूशन लिखना है। इतना काम करने के बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। अब तो हर क्वेश्चन में ये प्रोसेस तो करना ही करना है, राइट? अब आपके 30 सेकेंड्स लगे और आपने क्वेश्चन नंबर 1 या 2, बस हर क्वेश्चन वाइज चलते हैं। भाई, आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया अच्छे से, और नाउ यू नो कि ये क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं है, ठीक है, ये इसकी लेंथ इट्स नॉट वेरी लेंथी, आई कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, मेरे को प्रोसेस आता है। तो आप क्वेश्चन को करोगे। अब जैसे ही आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आता है, यू बिकम, ये तो हो ही जाएगा, चलो आगे देखते हैं, ये तो हो ही जाएगा। वंस दिस एटीट्यूड कम्स,
एरर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। नहीं, जब तक आपने आंसर नहीं लिखा तब तक आप नहीं कह सकते कि आपका क्वेश्चन हो गया। और बाई चांस अगर आपने एरर कर दी, सिंस इट्स एन इजी क्वेश्चन, आप एक उस स्टूडेंट से भी पीछे हो जाओगे जिसका लेवल आपसे काफी कम है, अगर उसने करेक्टली अटेम्प्ट किया और आपने एरर के कारण उस क्वेश्चन को गलत कर दिया। क्यों? आपको मिलेगा -1, उसको मिलेगी 0, तो उसका स्कोर ज्यादा हो गया। तो आपको क्वेश्चन पूरी केयरफुल होके कर देना है। आप जिस टाइप की एरर्स यूजुअली करते हो, आपको उन स्टेप्स पे बड़े ध्यान से चलना है कि आपकी एरर ना हो, सो दैट यू आर एबल टू राइट द करेक्ट आंसर इन द आंसर शीट। ऑलराइट, अब ये तो हो गए फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जिसका सोल्यूशन आपको आता है और आपने करेक्टली कर दिया, मार्क कर दिया। अब सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं पेपर में विच आर वेरी लेंथी। अब इस क्वेश्चन इज वेरी लेंथी से 2 पेज का सोल्यूशन है, और कॉन्सेप्ट इज कमिंग फ्रॉम 3 डिफरेंट फील्ड्स और 4 डिफरेंट फील्ड्स। यहां भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। नेचुरल है, ऐसे क्वेश्चन को करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो यू कैन लीव सच क्वेश्चन इन द फर्स्ट रीडिंग। भाई इस क्वेश्चन को छोड़ दो, यू विल कम टू दिस क्वेश्चंस लेटर ऑन। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना है। ये तो हो गई सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, वेरी लेंथी है या फिर कॉन्सेप्ट ज्यादा फील्ड से आ रहा है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो वी आर लीविंग फॉर द एंड। इसके बाद हम आगे चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको लगा आपका क्वेश्चन हो जाएगा और लेंथ भी ठीक है, आप चले और मिडवे आके रुक गए। ये जो पोजीशन है, ये सबसे गड़बड़ वाली पोजीशन है, मिडवे में रुके। जब आप मिडवे में रुकते हो तो हम क्या करते हैं, हमेशा ये देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला ठीक है कि नहीं। आप जाओगे किस पे? कॉन्सेप्ट पे। ये किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है? इस कॉन्सेप्ट को ऐसे करते हैं, ये हमारा बेसिक है, क्या ये बेसिक लगाने से ठीक होगा? अगर ये चीज होती है तो लगा दो बेसिक और ठीक कर लो। अगर बेसिक लग गया और क्वेश्चन ठीक हो गया, इट्स ओके। बट हर बार बेसिक नहीं लगेगा, नहीं लगा तो लीव द क्वेश्चन देयर इटसेल्फ। एरर ढूंढने की कोशिश मत करो। रीजन, आपको 3 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन पे नहीं लगाने। देखो 30 सेकंड तो आपने पहले ही लगा दिए, बीच में स्टकअप हुए, फिर आपने बेसिक सोचा, इतने में ऑलमोस्ट 3 मिनट्स हो गए। अब आपको या तो वो क्वेश्चन पूरा हो गया, नहीं हुआ तो लीव द क्वेश्चन असाइड, पास ऑन टू द नेक्स्ट। तो 3 मिनट इज ए क्रूशियल टाइम, जिससे ज्यादा तुम उस क्वेश्चन को डिवोट नहीं कर सकते। अगर आपने उस क्वेश्चन पे 10 से 15 मिनट लगा दिए, यू विल बी अंडर प्रेशर थ्रू आउट द पेपर। अब मैं चलता हूं फोर्थ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस पे। आपको लगा कर सकते हैं, आपने किया, अब आंसर में 2 चॉइसेस आ गई, ये दोनों करेक्ट है, हमारे पास तो सिंगल आंसर करेक्ट होता है। अब सिंगल करेक्ट कैसे ढूंढे? तो हमको क्या करना है भाई, फर्स्ट चॉइस है उसका एक पॉइंट पिकअप करो, पुट एंड चेक। पॉइंट पिकअप किया, आंसर में पुट करके देखा, अगर सेटिस्फाई कर गया यही आंसर है, अगर नहीं गया तो दूसरा आंसर है। तो आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा कि आंसर ये है या ये है। बट कई बार ये होगा, ये डिसाइड ही नहीं हो पाएगा, पुट एंड चेक हो ही नहीं रहा उसमें। अगर वो नहीं हो रहा तो यू कैन लीव द क्वेश्चन असाइड, पास आउट टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसको हमको लगा हम अटेम्प्ट कर सकते हैं और हमने किया, हमारा आंसर भी आ गया, पर चारों में से कोई आंसर नहीं है। अगर चारों में से आंसर नहीं है तो यहां भी बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। हमने करा भी और सॉल्व भी किया और चारों में से आंसर नहीं मिल रहा। ऐसे क्वेश्चन में देखना क्या है, आपकी एरर सबसे ज्यादा कहां हो सकती है? कॉपी डाउन। आपकी गलती कहां मिलेगी? इस सॉल्यूशन को बार बार चेक करने में नहीं मिलेगी। कॉपी डाउन का मतलब है वापस आओ क्वेश्चन पे, देखो एक कंडीशन टीचर लगाई, कोई गलती हुई, उसको ठीक करोगे और उसको क्वेश्चन को दोबारा से पूरा करोगे। अब मान लिया कॉपी डाउन एरर मिली ही नहीं,
even in that case you have to leave the question there itself. छोड़ दो. We'll come to this question later on. Next category of question, sixth category. भाई ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जहां पे हमको लगता है कि कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है. वहां कुछ दिया हुआ है, आपका कुछ आ रहा है, और दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, गड़बड़ है कहीं. ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल वहीं छोड़ देना चाहिए. देयर आर एरर्स इन जेईई मेंस पेपर. हर साल कुछ क्वेश्चन में होती हैं, तो ऐसे क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे. अगर आपने ज्यादा टाइम उसी पे बिता दिया तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है. अल्टीमेटली क्वेश्चन इज टू बी डिलीटेड, राइट. तो आपको उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ना है. भाई इसमें तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है बिकॉज ऑफ द कंडीशन, वो ऑटोमेटिकली अपने आप डिलीट हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट, सेवेंथ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन. सेवेंथ कैटेगरी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल आउट ऑफ द वे है. अब कोई आउट ऑफ द वे क्वेश्चन आ गया, भाई करिकुलम से बाहर जा रहा है, अपने आप चैलेंज हो जाएगा कोर्ट में, वो वैसे ही डिलीट हो जाना है. अगर डिलीट हो जाना है तो व्हाई शुड वी वरी, लीव द क्वेश्चन देयर इटसेल्फ. उस पर वो 10 सेकंड भी नहीं लगाने. नो एनालिसिस नीडेड, लीव द क्वेश्चन देयर इटसेल्फ. तो 7 डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं जहां से आपका क्वेश्चन होगा. भाई या तो क्वेश्चन हो गया, या क्वेश्चन ज्यादा लेंथी निकला, या आपने करा तो दो चॉइसेस आ गई, या आपने करा तो चारों में से कोई चॉइस नहीं मिली, या क्वेश्चन बहुत ज्यादा ना आउट ऑफ द वे आ गया, या क्वेश्चन में किसी और टाइप की एरर क्रॉप अप हो गई, राइट. तो दीज आर द कैटेगरीज. तो इनमें डिसीजन मेकिंग मैटर करेगी. किसी भी हालत में आपको 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने. अगर 3 मिनट वेस्ट हो भी गए, क्वेश्चन नहीं निकला, लीव द क्वेश्चन असाइड. मेरे हिसाब से कोई भी एवरेज प्लस स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट नियर अबाउट 15 क्वेश्चंस इन दिस वे आउट ऑफ द 30 टोटल. अच्छा एक बात बताओ, 15 के हिसाब से मैथ्स का परसेंटाइल आप समझते हो? 99 परसेंटाइल. मतलब यू आर एश्योर्ड ऑफ 99 परसेंटाइल इन मैथ्स. तो आपका मैथ्स कभी भी आपके आउटपुट को खराब नहीं करने वाला अगर आप 15 क्वेश्चन कर लेते हो. अभी अगर टाइम आपके पास अभी भी बचा हुआ है, आपने एक बार ट्रायल दी और टाइम बच गया, यू कैन गो नाउ विद लेंथी क्वेश्चन. जो लेंथी क्वेश्चन छोड़े थे अब उस पर जाओ एंड इंप्रूव योर आउटपुट. तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है टू अटेम्प्ट मैथ्स इज द डिसीजन मेकिंग, कि आपको 3 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन पे नहीं लगाने. अदरवाइज यू मे बी इन डीप ट्रबल, नॉट ओनली इन मैथ्स बट इन ओवरऑल जेईई मेंस पेपर. तो आज के वीडियो में आई डिस्कस्ड 6 रेमेडियल स्टेप्स, जिनमें 6 स्टेप है हाउ टू अटेम्प्ट मोस्ट डिफिकल्ट मैथमेटिक्स पार्ट. तो अटेम्पटेशन का वे मैथ्स का ये बनाओ इन द मॉक टेस्ट इटसेल्फ. जो घर पे पीसीएम के मॉक टेस्ट देते हो, मैथ्स पार्ट हमेशा ऐसे ही अटेम्प्ट करना है. देखो आपका आउटपुट में इंप्रूवमेंट आती है या आउटपुट में इंप्रूवमेंट नहीं आती. उसके हिसाब से आपने जेईई मेंस पेपर में चलना है. ऑलराइट, विद दिस मैं अपने वीडियो को एंड करूंगा. 6 रेमेडियल स्टेप्स आपको याद हो ही गए होंगे. फोकस इज 1, राइट. फोकस के बाद नेक्स्ट स्टेप था ऑर्डरिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स. ऑर्डरिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स के बाद टाइम लिमिट्स, इंप्रूवमेंट इन द वीकेस्ट सब्जेक्ट 4th. 5th क्या था? पीसीएम टेस्ट ओनली एट दिस जंक्चर. एंड 6th, the most important part of the video, how to attempt most difficult mathematics questions. All right? आप जेईई मेन सेशन 2 दोगे. उसके बाद इफ योर परसेंटाइल इम्प्रूव, आई विल लाइक कि आप कमेंट जरूर भेजो. आई एम ए ओल्ड पर्सन, आई विल एंशियसली वेट फॉर योर कमेंट्स. इफ यू हैव इम्प्रूवमेंट, आई विल फील सेटिस्फाइड. Okay then, thank you. All the best for JEE Mains Session 2. Thank you.